today's model answer discussion. So let's start with the first question. Okay. I hope all of you are out back. Okay, let's see. Abhishek is there, Arushi is there, Jayashri, Neeraj, Preeti. Okay. So the first question was asking about. I hope you are able to see it. I won't be able to zoom it. Otherwise, if I zoom it this page, I won't be able to annotate anything. Okay, so I won't be zooming out, zooming in. आप भी आपके जो स्क्रीन है ना वहाँ पर जूम कर सकते हो ये जो पेज को, तो आपको बड़ा फॉर्म दिखाएगा इसका. ठीक है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन जूमिंग इन तो आप मुझे बता दो. आई विल जूम इट आउट. ओके, सिर्फ आधा पेज जूम करूंगा बाद में. ठीक है. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट व्हाट हाउ डज दिस coated vesicle with the target membrane. Okay. Now you have 10 marks means you will be having only 2 pages. Okay. Or those who have attempted the last 2 question papers, mini test 1 and mini test 2, they would have understood that last time we were given almost 1 hour. Okay, for writing those answers. Okay. But today I have already given you only 40 minutes. Okay, now 40 minutes is also 4 minutes more than the time you will have in the UPSC. Okay, you have almost 36 minutes for every 50 marks. Right. So for these 5 questions also you will be having almost only 36 minutes. Right. So now today you may have understood that why it is very much required to write only specific sentence in your answer and why it is required to write only as much that is required. Even if जो आपको आता है और even if the content which you know about that answer, if it is of only 1 page, अगर वो 1 page का ही आप आंसर पता है पर आपको पता है कि इसके अलावा कोई आंसर नहीं है, यही कंटेंट है जो इस क्वेश्चन को चाहिए, so write only that content only, then only you will be able to complete all of your questions within this time limit. Okay, 36 minutes में 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, if you write only those things which are required. Okay, maybe this or maybe that content is only for 1 page. Okay, so don't ऐसा कभी नहीं सोचना है कि if you have been asked this for 10 marks so you will have to have read this entire this answer for 2 page. 2 पेज आपको फिल करना ही है, ये यूपीएससी का पैटर्न नहीं होगा आपका. That would be the pattern for your what university exams, but here आपको सिर्फ उतना लिखना जितना आपको आता है. So what we know about these coated vesicles, we have seen this in our cell biology lectures, right? So I have already given these, right? But in that now there is a thing whether to give introduction or not to give introduction. Okay, I usually tell you about that you should go directly for the question. Okay, अगर question straightforward है ना, if the question is asking you straightforwardly about the answer or any topic, then just directly start with this topic or just directly start with the answer. But here they have asked a generalized coated vesicles. Okay, and they have asked about how they are fusing with this target membrane. Okay, this we can understand that the target membrane can anything, but what is this coated vesicle is that we know, if we have gone through these notes, there are 3 types of vesicles are there. Okay, so that's why we will see, it was always good to at least just introduce these 3 types of vesicle in this first introductory part. Okay, if you have less time then you can directly start with this point. अगर आपके पास कम टाइम है तो directly ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूजन के साथ स्टार्ट करो. Don't give any kind of introduction. Okay, इसका इंट्रोडक्शन देने से अच्छा है कि आप इसका डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लिख लो और इसके अलावा जो कुछ भी टाइम यहाँ सेव होगा यूज दैट टाइम टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. क्योंकि आपको टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होगा यूपीएससी में. आपका अटेम्प्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर फोकस for a particular question, okay, try to give a limited focus and try to attempt the second question. एक क्वेश्चन को पूरा लिख लिया, suppose you have attempted this 10 mark question to the fullest extent, 2 pages fill किए दिए उसके, and because of that you have not been able to attain the second question, तो आपको इस 10 marks के even if you have written a perfect answer तो your marks may approach this 10, 8 के आसपास आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे या फिर 9 भी मिल सकते हैं. Okay, but you won't be getting any marks for this. Okay, but suppose you have just divided your time that you have suppose have only like 8 minutes to write. Okay, so you will give 4 minutes to this question, you will write almost 1 page of answer,
and you will give 4 pages, this 4 minutes to this question, and you will write 1 page of this answer. Okay, and you have written only specific points, okay, or only concise point, or only points which are actually required for that answer. So in this case you will be scoring out of these 10 आपके 5+ ही आएंगे दोनों में. You will be scoring 5+ marks in both. Okay. So that would be always be better than this strategy. एक क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज देना या फिर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही लिखने से अलावा ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा होगा कि टू ट्राई सॉल्विंग एज मच एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल. ओके, so in this we have known about these 3 types of vesicles. So we have introduced, and we have also introduced that what is this coated vesicle. Suppose in case if the question is if the question was ये होता कि question that how does Clathrin coated vesicles fuse with the target membrane. अगर ये question होता, या फिर question ये होता कि how does this coatomer coated vesicle fuse the target membrane, or how does this caveolin coated vesicles fuse with the target membrane. Okay, so now consider this question that they are specifically asking how these Clathrin coated vesicles are fusing. See, in that cases what is expected by this examiner is that you are already knowing this Clathrin coated vesicle, right? ये आपको already पता है. And if they are asking specifically about Clathrin, so you won't be explaining these 3 types of vesicle. तब आपको 3 टाइप्स के वेसिकल्स नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली पूछा है ना सिर्फ क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स. then you will only give this general one line description of the coated vesicle, क्या होते हैं, what are they useful for, and then you will just directly go how this Clathrin coated vesicles transport and fusion occurs. तब ये 2 एक्सप्लेन नहीं करते बैठोगे. इवन इफ ये 2 लाइंस जब आप सेव करोगे ना, ये 2 लाइन का जो सेव होगा टाइम आपका 10 to 20 सेकंड, वो आपको कहीं और यूजफुल रहेगा. ठीक है, तो यू शुड गो लुक एट द क्वेश्चंस एंड व्हाट कुड बी दिस एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उस पे डिटरमाइन करो कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए. ओके, नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट यू आर सपोज्ड टू गिव दिस फ्यूजन of this target membrane. Okay, we can also give that even if they are about to fuse any space in this entire suppose cell or entire this human organ system. Okay, so they will be transported with this motor proteins. Okay, they will transport everywhere, and this actual fusion of these vesicles will be having only 2 phases. Okay, docking and fusion. Okay, हमने ये हमारे लेक्चर्स में डिटेल में किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल. Okay, so this basically what is the case with this docking and fusion is that first there are certain proteins which will help to dock. Docking मतलब क्या होता है, ship whenever we are say that ship का docking मतलब क्या होता है, if this ship is there, वो वहां पर कहीं तो भी जाके अटैच हो जाता है किसी पोर्ट पे, right? So that will be referred as docking. Okay, so the same case of docking also occur in the case of these vesicles. There are certain proteins which will first anchor these vesicles and they bind these vesicles to this target membrane. Now this will be the wall of target membrane, right? And these vesicles will have certain proteins. Those proteins like means what, a wrap protein is there, and on this target there will be tether proteins. First of all these tether and wrap proteins will attach themselves so that it will be a kind of a docking. Okay, then these again T snares, and the T snares means what, target snares are there. What are these V snares are? V snares are snare proteins which are present on this vesicle. Okay, they will attach. Okay, and ultimately they will give what, fusion. Okay, and energy of this fusion will come from what, this twisted snares. Okay, with twisting of snare से जो energy आ रहा है उससे ये entire जो vesicle होगा वो fuse होगा. This is how this vesicle docking and fusion occurs. Okay, तो इसमें हमने docking explain किया है डिटेल में, और fusion भी we have explained fusion also. What is the snare proteins are? Okay, how this process occurs. Okay, we have also explained these 2 types of snare proteins also, like vesicular snare protein, T snare proteins. Okay, so this is how we should write this answer. Okay, even if you are not able to write this all of these points, at least explain what is this docking is. ये पूरा डिटेल थ्योरी है, मैंने जैसा नोट्स में उठाया. ओके, एट वाइल राइटिंग आंसर्स यू कैन कट शॉर्ट इट. ओके, सिर्फ डॉकिंग मतलब आप सीधा एक्सप्लेन कर सकते हो कि डॉकिंग में क्या होता है, दिस RAB प्रोटीन्स ऑन दिस वेसिकल अटैचेस देमसेल्फ विद दिस टीथर प्रोटीन ऑन दिस टारगेट मेम्ब्रेन, एंड दिस एंटायर वेसिकल अटैचेस टू इटसेल्फ, अटैचेस टू दिस टारगेट मेम्ब्रेन. सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन 1 or 2 लाइन में आप कर सकते हो. ओके,
एंड दिस वी स्नेयर्स एंड टी स्नेयर्स का सेकंड पॉइंट होगा उस पॉइंट डॉकिंग में। ओके, और फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन में सिर्फ आप ये एक्सप्लेन करोगे कि वट एवर दिस एनर्जी फॉर फ्यूजन, ये जो मेम्ब्रेन है वेसिकल का, दैट fusion of this vesicular membrane with the membrane of this target we can say target membrane is there, उसका जो fusion होगा, the energy for that fusion will come from what? It will be come from this twisting of this snare. ये होगा थर्ड लाइन, the energy for this fusion will come from what? Twisting of this snare protein. इस snare protein का जो twisting होगा ना, वहां से होगा. So is only you can write this 1, 2 and 3 sentences in this answer and still you will be fetching good marks उसमें, है ना, क्योंकि almost आपने सब कुछ explain किया है वहां पर जो जो required है. Along with the diagram also, diagram will carry almost 2 marks. Okay, so these docking and fusion is सबको almost 3 या 3 marks मिलेंगे सिर्फ docking का ये जो process जो detail में explain करने से. Ultimately last types ये 2 types, इसको 1 और 2 marks होंगे. तो ultimately you will be scoring ये जो आपका स्कोर होगा वो अप्रोच करेगा इस 10 को ओवरऑल. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, यू हैव एनी क्वेरीज ऑन दिस फर्स्ट आंसर? किसी को कुछ क्वेरी है क्या फर्स्ट आंसर में? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन व्हाइल टॉकिंग यू कैन जस्ट मैसेज आल्सो, चैट बॉक्स में भी आप आपका क्वेरीज कर सकते हो. ओके, अभिषेक इज सेइंग नो. ओके, आई होप यू हैव रिटन इन द सेम वे. जिसने भी आंसर सबमिट किए उनके आंसर्स में चेक करके उनको पर्सनली भेज दूंगा. ठीक है. The next question was asking about this, what determines the fluidity of the biological membrane? कौन determine करता है fluidity of the biological membrane? Okay. Now intro में क्या आपको biological membrane introduce करवाना है? Whether you want to introduce biological membrane here? No, biological membrane तो consider ही होगा ना, आपको पता ही होगा. So fluidity को explain कर सकते हो. What is this membrane fluidity? Okay, 1 or 2 lines में membrane fluidity मतलब क्या? Okay. So fluidity just basically refers to what? Viscosity of lipid bilayer compound of the cell. Okay. See, ये line आपको मेरे notes में add करना पड़ेगा. See, there are 1 or 2 lines are there which are supposed to added in my notes. मैं आपको अपने जो group है physiology का उसमें ये add कर दूंगा, आपको बता दूंगा. ठीक है. Next thing is that we are उस notes में हमने 3 factors को discuss किया. We have discussed about 3 factors which are actually this kind of controlling or just regulating this fluidity of the membrane. The first one was this lipid to cholesterol content, then was this structure of the phospholipid hydrophobic tails, and the third one was about the temperature, right? So ये detail में point तो explain करने गया तो तब तो हमें almost more than half hour ले लिया था हमने explain करने के लिए. ठीक है, ये पूरा explain करने में क्यों ये कोलेस्ट्रॉल ये है, कोलेस्ट्रॉल क्यों ये फ्लूइडिटी बढ़ाएगा या फिर कम कर देगा, तो ये तो फिर से आधे घंटे का लेक्चर तो नहीं लूंगा हमने, बट दिस यू शुड राइट एटलीस्ट, राइट. इसका जो पीडीएफ है ना, दोज जिन्होंने मुझे आंसर शीट भेजा है मॉडल आंसर, सिर्फ उनको ही इसका पीडीएफ मिल जाएगा मॉडल आंसर का. इसके बाद अभी पब्लिक ग्रुप में फ्रीली नहीं शेयर करूंगा मैं. तो जो कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, उनको ही इसके मॉडल आंसर के पीडीएफ मिलेंगे, अलॉन्ग विद दोज हु आर ऑलरेडी देयर इन दी माय फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी, उनको तो मिलेगा ही. पर अगर आप उस किसी कोर्स में भी नहीं हो और अगर आप आंसर लिख के मुझे भेज रहे हो तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मॉडल आंसर का. ठीक है, तो उसमें सिर्फ हमें क्या एक्सप्लेन करना है, व्हाट वी जस्ट नीड टू एक्सप्लेन इन दिस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, दैट हाउ दिस लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट अफेक्ट, राइट, दिस फ्लूइडिटी. वी हैव सीन दैट इन दैट लेक्चर दैट कोलेस्ट्रॉल इज द थिंग. कैसे कोलेस्ट्रॉल एक्ट करता है? एट ए रिलेटिवली लो टेम्परेचर यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी वो कम हो जाता है. Okay, because of at the lower temperature, but this cholesterol does not allow these phospholipid tails to come in close proximity. तो जो relatively low temperature पे जो gel state या फिर solid state होने वाला था वो prevent करेगा कोलेस्ट्रॉल. Okay, and the cholesterol relatively high temperature पे क्या करता है, usually क्या होता है, बहुत ज्यादा fluid state आता है. This cell membrane gets usually a very fluid state at the higher temperature, but this cholesterol prevents even that higher fluid state also by doing what? By joining these different phospholipid tails to each other. उसको एक दूसरे से अटैच करके क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा फ्लूइड स्टेट भी नहीं आने देगा. So this cholesterol works in both way. Okay, it just you can say decrease, you can say increase the fluidity also, and also it decrease the fluidity also. It is working in the both ways. So that's we are explaining in this lipid to cholesterol content. In structure of phospholipid hydrophobic tails में हमने क्या explain किया,
फॉर दिस यू कैन जस्ट एड एन एडिशनल डायग्राम ऑल्सो. उस एडिशनल डायग्राम में क्या है, सपोज दिस इज दी phospholipid bilayer. Okay, if it is a saturated one, okay, if it is a saturated one, तो saturated में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, राइट. अनसैचुरेटेड वन, ओके, अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड टेल्स में क्या होता है, देयर इज अ काइंड ऑफ अ डबल बॉन्ड इज देयर. ओके, बिकॉज ऑफ दैट डबल बॉन्ड देयर इज अ काइंड ऑफ फ्लूइडिटी इज देयर. ओके, सो दैट वी हैव एक्सप्लेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक टेल्स. ओके, देन द टेम्परेचर में क्या है, एट दिस डिफरेंट टेम्परेचर, एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट हैपेंस एट द रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, यूजुअली इट इज fluid state. What happens at the relatively low temperature, it is generally gel state. Okay, that you are supposed to explain. ये explain करने के बाद almost all the जो requirement है इस आंसर की along with this diagram वो complete हो जाती है, right. अगर कुछ query है तो you can just mention in the chat box. Right now we will go about this third question. Okay, what is the third question was that it was asking about the write a note on glycoprotein. Okay, glycoprotein हमने सेल बायोलॉजी में देखा है. दिस इज जस्ट बेसिकली दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स आर दिस लाइक दिस ल्यूकोसाइलिन, ओके, DAF, this LDL receptor. Okay, they are mostly present on this extracellular space only. Okay, so these are the glycoproteins we can just mention in one line only. See, at the time of just covering these glycoproteins in our cell biology, at that time we haven't introduced this glycoprotein because हमें पहले ही पता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं. Okay, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस आंसर आपको एक या दो लाइन आपको ग्लाइकोप्रोटीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए देना पड़ेगा, एटलीस्ट टू गिव देयर लोकेशन, उनका लोकेशन या फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है इसके लिए. ठीक है, उसके बाद दीज आर द जनरल एग्जांपल्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. देन वी हैव सीन दिस, देयर आर टू टाइप्स, ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड सैकराइड्स आर देयर. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स. इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना ही करना है. विदाउट दिस ग्लाइकोप्रोटीन वोंट बी गेट कंप्लीटेड. ओके, सो ये है एंटायर this glycoproteins के example. Okay. The next we have given these detailed examples of this O-link like this leukosilin जो हमने यहाँ पर देखे. इसका थोड़ा theoretical explanation दे रहे हैं हम, what are this required. Okay. N-linked में हमें कुछ diagram, there wasn't any diagram in this N-linked oligosaccharides, but we have just mentioned them. Okay, that which are those, immunoglobulin G, immunoglobulin M. Okay, at the last we have mentioned one or two functions. Okay, ठीक है. तो इतना करने के बाद इसका कंटेंट मोस्ट ऑफ दी जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा इसमें. ठीक है, वी हैव गिविंग दिस व्हाट आर दिस ग्लाइकोप्रोटीन, वी शुड ऐड एटलीस्ट दिस सम ऑफ द मोर फंक्शंस ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन. हाँ, जब इसका हम रिवीजन सेशंस जब लेंगे ना, सो एट दैट टाइम आई मे गिव यू सम मोर फंक्शंस ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन, तब दूंगा मैं आपको. अगर तब तक आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, आप मत डिगिंग करो, है ना. जो मेरा मटेरियल है वही रेफर करो. अगर कुछ मुझे अच्छे मिल जाते तो आई विल सप्लीमेंट दैट, है ना. हमारा फिजियोलॉजी का ग्रुप पहले ही है ना, तो वहां पर मैं ऐड कर दूंगा. नेक्स्ट वी विल अपलोड दिस, लेट्स सी व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन. द फोर्थ क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट दिस, राइट अ नोट ऑन बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम in the kidney. Okay, so in this acid base balance we have seen this buffer system. First we have seen this bicarbonate buffer system, then we have seen the phosphate buffer system. Okay, then these are the chemical buffers, then we have seen this physiological buffer system. Physiological buffer systems means what? We were using these chemical buffers at two places mostly. First at the lungs and second as this kidney or the renal control of pH. Okay, so in that the question is specifically asking about 10 marks, that is asking about only bicarbonate buffer system. Okay, and I see there is one reason why I am taking your 10 marks के question ही क्यों ले, why I am taking only your 10 marks question. The reason is 10 marks के question के लिए आपको और ज्यादा डिफिकल्टी जाती है to accommodate the knowledge you have within 2 pages. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपीएससी में. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन यूपीएससी कि आपके पास नॉलेज तो है पर उसको अरेंज कैसे करना है 2 पेजेस में. बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में अगर आपको दे दिया तो आप 5 पेजेस भी लिख सकते हो मेरे नोट्स में, है ना, क्योंकि ये तो मैंने कट शॉर्ट करके दिया है. बट इवन यू विल बी एबल टू राइट ऑलमोस्ट 4 पेजेस एटलीस्ट फॉर द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. बट यहाँ क्या इंक्लूड करना है वो टास्क होता है. इसलिए मैं 20 मार्क्स 15 मार्क्स के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पर आपको 3 पेजेस मिल जाएंगे. तो 3 पेजेस में तो है तो अब बहुत ज्यादा लिखते जाओगे कहाँ पर ये जो मेन टास्क है ना कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिखना, ये हमें सीखने के लिए हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन ले रहे हैं. और ऐसे ऑलमोस्ट 6 मिनी टेस्ट होंगे. ओके, मिनी टेस्ट के बाद फिर हमारे
उसके बाद मिनी टेस्ट के जो मेजर टेस्ट चालू होंगे वो होंगे ऑलमोस्ट 2 आवर्स, राइट। वो टेस्ट कब से, इस जनवरी में एक टेस्ट हो सकता है उसका, जब इन्वर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे ना इस ऑलमोस्ट 14 जनवरी के बाद, उसमें उसका एक दो तो मेजर टेस्ट होगा इसका इन्वर्टिब्रेट्स का उसमें, ठीक है। तो तब हम लेंगे 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन लेंगे उसमें, और लास्ट फेज में हम सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन ही लेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सीधा आपको 20 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम वर्क्स। सी बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में दो चीजें, ओके। I have also given you this point, okay। यहाँ पर भी हमने 1 से 1.5 पेजेस दिए बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ, ओके। Then I have also given you separate note on this bicarbonate buffer system in this renal control of pH, okay। उसमें हमने ये डायग्राम दिया था और उसका ये एक्सप्लेनेशन था ये पूरा। अगर आपके पास कम टाइम है ना, if you have less time available with you, you can just give this diagram and the explanation of this only। ये सिर्फ यही दे सकते हो आप, तो भी आपका जो मार्क्स होंगे ना वही 5 से कम नहीं आएगा, 10 से, ओके। बट यू हैव सफिशिएंट टाइम, देन वी विल अप्रोच विद द परफेक्ट वे। व्हाट विल बी दैट परफेक्ट वे? शॉर्ट अ नोट बोला है ना, इज आस्किंग अबाउट नोट, ओके। सो वी विल जस्ट गिव दी व्हाट इज दिस बाइकार्बोनेट सिस्टम, इसको डिफाइन करेंगे हम, ओके। बाइकार्बोनेट सिस्टम को डिफाइन कर दिया, इट इज गिविंग दिस HCO3 माइनस एंड H+। देन वी विल गिव अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बाइकार्बोनेट सिस्टम। अगर ये रिएक्शन तो आपको कभी भी नहीं भूलना है, okay। ये रिएक्शन, ये whatever this diagram is there, even than this diagram is more important। Why? Because this diagram actually sum up the entire functioning of this bicarbonate buffer system। यही sum up करता है पूरे functioning को। कैसे? If see the reaction is reaction towards the right, means what? It is progressing towards here, means what? It is generating more and more H+, it is getting more and more acidic, means what? It will decrease the pH, okay। ये एसिडिक क्या है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, pH कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होता है, इसके लिए ऑलमोस्ट 2 घंटा हमने पूरा माथा बच्ची किया था, है ना। पर हमने ये याद रखा था कि कब एसिडिसिटी बढ़ रहा है, कब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद भी pH डिक्रीज होता है, मतलब कैसा होता है, ये सब हमने टर्मिनोलॉजी का मतलब मीनिंग्स देखा है हमने लेक्चर में, है ना, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई एम होपिंग दैट at least, okay। So this is the case where the reaction progress towards right, means what? More and more acidic, so pH is decreasing. Reaction progressing toward this left, means what? This H+ concentration is decreasing, okay, and this pH is increasing, the solution is becoming less and less acidic, or you can also say more and more basic, right? So for that you should never forget this reaction, okay। यहीं पर हम बाइकार्बोनेट बफर का वट एवर दिस फंक्शनिंग ऑफ बाइकार्बोनेट बफर है वो भी देख सकते हैं। कैसे? इफ देर इज एन इंक्रीज इन pH, अगर pH इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है या कम होता है, pH इंक्रीज होता है मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। एट दैट टाइम दिस वीक एसिड विल बी, ये जो बाइकार्बोनेट बफर है ना वो वीक एसिड करके फंक्शनिंग करेगा, राइट। इट विल फंक्शन एज एन वीक एसिड। वीक एसिड क्या देता है, अल्टीमेटली H+ देता है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेट फिर क्या होगा, जो कुछ भी इंक्रीज हुआ pH होता है बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन H+ कॉन्सेंट्रेशन, वो फुलफिल हो जाएगा और अल्टीमेटली वी विल गेट व्हाट, डिक्रीज इन pH। तो डिक्रीज इन pH मतलब क्या, pH विल बी नॉर्मलाइज। अर्लियर का इंक्रीज और अभी ये डिक्रीज, तो नॉर्मल होगा। Same case seen here whenever this reaction is progressing to the left also, कब लेफ्ट को प्रोग्रेस होगा, if the pH decreases हो रहा है मतलब क्या, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ज्यादा। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, if the H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग, then we want someone, हमें कोई तो भी चाहिए जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्ट करेगा, राइट, तभी तो हम डिक्रीज करेंगे। और अदर थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सक्रीट दिस H+, राइट। So this HCO3 minus of this bicarbonate buffer will act as weak base। weak base क्या करता है, एक्सेप्ट करता है H+ को, और ये जो रिमेनिंग H+ होंगे, और रिमेनिंग H+ जो होंगे, they will be what, they will be removed through the urine। bicarbonate buffer acts this H+ जो increased concentration है, bicarbonate buffer works in 2 ways to eliminate this H+। first way is to combine this H+ with this HCO3 minus को combine करके H+ को concentration कम कर देना।
बाइकार्बोनेट के साथ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एक्वलेस आयन कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देना, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन जो कम कर देना। द सेकंड क्या है, सीधा ये H प्लस क्या करेगा, जस्ट एक्सक्रीट दिस H प्लस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट विल बी द डायरेक्ट वे। ओके, नाउ दैट way of this bicarbonate buffer by decrease or by of eliminating this increased concentration of H plus will be explained in this way. Okay, bicarbonate buffer mechanism working in the renal pH, or you can say in the kidney specifically for what, specifically for excreting this H plus। यहाँ पर भी क्या होता है, अभी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। रेनल बाइकार्बोनेट बफर कैसे एक काम करता है, दिस HCO3 माइनस के साथ कंबाइन करेगा H प्लस। ओके, दिस किडनी में, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया इस पार्ट में, राइट, दैट HCO3 माइनस इज कंबाइनिंग विद दिस H प्लस, एडिशनल इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग H2CO3, H2CO3 से क्या हो रहा है फिर H2RCO2 हो रहा है। सो इट इज गेटिंग एलिमिनेटेड टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स दिस, यहाँ तो ब्लड कैपिलरीज है ना, जिसने लेक्चर्स किया है उसको समझ में आएगा ये डायग्राम, बाकी लोगों को मे भी डिफिकल्ट लग सकता है। ओके, तो ये जो H2 और CO2 है वो तो कहाँ पर जाएगा, PCT वॉल में जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वे ट्यूब्यूल में जाएगा। यहाँ पर भी क्या होता है, फिर ये एडिशनल CO2 के साथ कंबाइन होकर फिर से H2CO3 बनेगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, देन इट इज फॉर्मिंग दिस HCO3 माइनस एंड H प्लस। अभी ये H प्लस पहले जब यहाँ था, ओके, द H प्लस इट वाज अर्लियर ऑन दिस साइड ऑफ ब्लड, और ये ब्लड में था पहले H प्लस, अभी ये H प्लस कहाँ पर गया, ऐसे करके यहाँ पर से यहाँ गया है। नाउ दिस इज द न्यूअर पोजीशन ऑफ दिस H प्लस। यहाँ से तो सीधा क्या कर हो रहा है, फ्रॉम हियर इज डायरेक्टली दिस, यहाँ ये क्या है, रेनल ट्यूबुलर फ्लूइड, मतलब क्या, यूरिन का पार्ट है ये, राइट, प्री यूरिन उसको बोल सकते हैं। सो इट इज कमिंग इनटू द यूरिन। ओके, so now here also the bicarbonates which are this HCO3 are there, sodium bicarbonates are there, they will combine with this H plus and they will eliminate this in the urine। और क्या होगा, अगर ये H plus बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ गए तो this H plus will be directly eliminated as an free H plus into the urine। इसकी वजह से क्या होता है, pH यूरिन का ऑलमोस्ट 6.8 या फिर एसिडिक pH होता है, राइट। रेयरली you may have heard about this basic urine। हाँ, बेसिक यूरिन किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, एसिडिक यूरिन ही प्रॉब्लम होता है, राइट। So this in this way when you will explain this all the functioning of this entire system, this will take you around this 10 or 12 points। Okay, so this in this way you will be explaining this entire bicarbonate buffer system। Yeah, earlier you are explaining this how this HCO3 minus are generating and this H plus they are just increasing the pH, or how this carbonic acid is just decreasing the pH। लास्ट में हमने क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ ये पार्ट। ओके, यहाँ पर जैसे जा रहा है ना H प्लस, तो ये कैसे एलिमिनेट हो रहा है इन दी यूरिन। सो दिस वुड बी द वे दैट वी विल बी एक्सप्लेनिंग ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ दिस बाइकार्बोनेट सिस्टम, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा ये। अगर आपके पास कम टाइम है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली ड्रॉ दिस डायग्राम। इफ वी हैव थिंक, अगर पार्ट ऑफ, अगर ये डायग्राम देखिए और ये डायग्राम देखिए तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं आपके, ये जो एंटायर डायग्राम है यहाँ पर, ये पूरा डायग्राम अल्टीमेटली यहीं पर, यहाँ पर भी इंक्लूड हो सकता है। ओके, यहाँ पर भी, तो इसकी वजह से अगर सिर्फ यही डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, देन ऑल्सो ऑलमोस्ट 2 मार्क्स ही आपके कट होंगे। ये कब मैं बोल रहा हूँ, जब आपके पास कम टाइम है तब। ओके, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट दिस ऑल्सो, तभी कंसेप्ट क्लियरिटी होगा, किसका, आपका नहीं, एग्जामिनर का, कि आपको सब पता है, राइट। Now this is the fourth question. So you have any queries about this fourth question? Yes or no? अगर queries है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। Otherwise we will start with the fifth question. Now this fifth question is that write a short note on the working of in vivo blood clotting factor। okay, अभी मुझे पता नहीं आपने मॉडल आंसर में क्या लिखा है, बिकॉज जब मैंने नोट्स में दिया था तब मैंने यहाँ पर 2 फैक्टर्स दिए थे इंट्रिंसिक सिस्टम में, इन विवो एंड इन विट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये दोनों फैक्टर्स के जो मैकेनिज्म वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा है, ये बेसिक पाथवे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ही आपने लिखना चाहिए। ओके, बिकॉज आई एम डायरेक्टली आस्किंग यू अबाउट वर्किंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, दैट टू इन विवो। मैंने हीमोस्टैटिक का प्रोसेस नहीं पूछा आपको। ओके, हीमोस्टैटिक और हीमोस्टैटिक पाथवे नहीं पूछा, आई एम जस्ट डायरेक्टली आस्किंग यू डायरेक्टली अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स, व्हाट आर दोस क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड हाउ दे आर फॉर्मिंग दिस क्लॉट। ओके,
देयर इज वन, वी कैन से करेक्शन नहीं बोल सकते, बट मे बी यू मे हैव गॉट कंफ्यूज। मैंने क्या किया था, नोट्स पे मैंने यहाँ पर क्लॉट रिट्रैक्शन दिया है, मतलब क्लॉट ही है, क्लॉट जो फॉर्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला था, सीरम अलग हो जाता है, इसके लिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सीरम हियर। बट अगर मैं दूसरे किसी और के व्यू से देखूं तो इसका मतलब ये हो भी सकता है कि क्लॉट फॉर्म होने के बाद सीरम फॉर्म हो रहा है, या फिर क्लॉट का कन्वर्जन सीरम में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग यही है कि क्लॉट अलग हो रही है, क्लॉट फॉर्म हो रही है और सीरम अलग हो रहा है। ओके, पर अगर आपको ऐसा कंफ्यूज हो रहा होता उस नोट्स में मेरे, तो यहाँ पर आपको सीरम कट को सीधा यहाँ पर क्लॉट लिख दो, फिर भी चलेगा आपको। ओके, वो अल्टीमेट ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट उस नॉलेज को करने की जरूरत नहीं। ओके, कुछ लोग जो सीधा दोज हु आर जस्ट डायरेक्टली रेफरिंग दिस नोट्स ना, उनको लो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो वो समझे कि यह क्लॉट का ही बाद में सीरम बन रहा है। आपको पता होना चाहिए क्लॉट क्या है, सीरम क्या है ना। क्लॉट फॉर्म में होने के बाद सीरम अलग होता है, राइट। अगर ये पता नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाए, अदरवाइज यू विल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब दिस एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे में क्या सिर्फ हमें इन विवो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी इन विवो मतलब कौन कौन से फैक्टर है, ये जो पहले फैक्टर्स दिए थे ना इन विवो, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, वो तो हमें वैसे ही लिखने। पर इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जो मैंने इन विवो और इन विट्रो फैक्टर दिया था, ओके, ओनली अंडर कंट्रोल कंडीशन बट नॉट इनसाइड द बॉडी, ये जो इन विट्रो पॉइंट थे वो यहाँ पर नहीं देने थे। अगर आपने इन विट्रो यहाँ पर दिए ना एग्जाम में, तो मैं आपके 2 मार्क्स कट करूंगा वहां पर, क्योंकि ये कंसेप्ट का पार्ट था, मैंने सिर्फ इन विवो पूछा था। और आप, आई होप दैट इन विवो यूज करके, वर्ड यूज करके आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। आई एम जस्ट आस्किंग दिस ओनली। ओके, तो एक बार आपने ऑब्वियसली, अगर आप ये आपके आंसर शीट में भी ड्रॉ करेंगे तो ये एंटायर पेज आपका फुल हो जाएगा इसी से, और यही आपका मेन पार्ट होगा ये, इसलिए फर्स्ट पेज पे आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, एक बार आपने ये ड्रॉ कर दिया, देन यू विल जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट। अभी इसका हर एक पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करना, यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्लेन दिस एवरी पॉइंट, that this inactive 12 will converted into this active 12a, then you will say that this inactive 11 will converted into 11a। ये सब एक्सप्लेन नहीं करते हैं बैठने का, तो ये क्यों दिया है, why you have given this entire cycle, ये फ्लो चार्ट क्यों दिया है आपने, ये फ्लो चार्ट एग्जामिनर को रीड करने के लिए ही दिया है ना आपने। सो यू वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस स्टेप्स इन डिटेल। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि दिस इनएक्टिव x कन्वर्टेड इनटू दिस एक्टिव x है, दिस इनएक्टिव x कन्वर्टेड इनटू दिस एक्टिव x है, ये एक्सप्लेन करते नहीं बैठने का। अगर ये एक्सप्लेन करोगे देन आपको टाइम कम मिलेगा, तो आपका बाकी का क्वेश्चन का अटेम्प्ट कम हो जाएगा। वंस यू हैव गिवन दिस एंटायर साइकिल, नाउ वी विल एट द लास्ट ओनली वी विल सम अप। क्या होगा, व्हाट इज द समरी, इंपॉर्टेंट स्टेप्स का समरी क्या है यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, formation of this factor x or factor xa। okay, once this factor x से फॉर्म होता है ना, क्लॉटिंग टेक्स प्लेस विद इन द फ्यू सेकंड, उसके बाद क्लॉटिंग फ्यू सेकंड में हो जाता है। ओके, ये एक्सप्लेन करते नहीं बैठने का हमें, राइट। वी आर ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग दैट दिस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर कैन बी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, लाइक इन विवो फैक्टर्स है and in this intrinsic system and in vivo factors in this extrinsic system। under two systems ये in vivo factors explain करते हैं। then you will in the intrinsic system you will explain that this blood is exposed to the collagen fibers underlying this damaged endothelium। फिर क्या होगा, चेंज इन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा उसकी वजह से। so because of that change in blood constituents ये सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, activation of this factor xa, this is the major step, right। in this extrinsic in vivo system में भी क्या हो रहा है, triggered by injury to the blood vessel and other tissues, वो क्या है रिलीज कर रहे हैं, these are releasing this tissue thromboplastin 3 or the protein phospholipid mixture that is just activating this inactive 7 into the active 7a। okay, then it is ultimately forming this again factor xa। ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, थियरी में आप सीधा देंगे important steps are that is the formation of XA, then this is the formation of prothrombin activator। ये जो IPA और EPA है ना, वो prothrombin activator फॉर्म होंगे। then you will explain this formation of thrombin, this much formation of thrombin में क्या होता है, this vitamin K is required to in this liver to synthesize prothrombin। ये जो prothrombin है ना, वो liver में vitamin K जरूरी है इसके लिए, synthesize के लिए। now this prothrombin is converted to thrombin by the prothrombin activator। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, नाउ व्हिच आर दोस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दीज आर द डिफरेंट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दिस आईपी एंड ईपी। एट द लास्ट यू विल एक्सप्लेन व्हाट फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन। अभी ये फाइब्रिन कैसे फॉर्म हो रहा है, दिस soluble plasma protein fibrin कन्वर्टेड टू दिस insoluble fibrin, factor 3
13 and calcium catalyze this conversion of loose cross network. ये जो पूरा 13 कैसे catalyze करेगा, ये ultimately you are getting this fibrin. Finally this fibrin forms a clot within 30 minutes of formation. बस इतना ही एक्सप्लेन करना है हाफ पेज में ही पूरा साइकिल. ऐसे करोगे तो ही आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा जूलॉजी का. बहुत लेंथी पेपर होता है, वहां पर आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी करती है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करनी पड़ती है ना. तो डोंट लुक एट इन द वे कि आपको अगर 2 पेजेस से 2 पेज का कंटेंट मिला तो ही आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा. ऐसा नहीं होता जूलॉजी में. हम टेक्निकल सब्जेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ थ्योरेटिकल या पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं है. ये टेक्निकल सब्जेक्ट है. टेक्निकल नॉलेज कभी भी कंसाइज में ही होता है ना. अगर एक्सप्लेन किया तो सिर्फ इस एंटायर साइकिल में सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, राइट. सो जितना आता है उतना ही लिखना है आपको. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. आई विल शेयर दिस पीडीएफ ओनली टू दोज हु विल सबमिट द आंसर्स टू मी. ठीक है, आपको कुछ क्वेरी है क्या? यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी. कोई क्वेरी है? नो क्वेरीज. ओके. सोनल आपने कैसा लिखा है? अटेम्प्ट किया क्या पूरा आज? पूरा अटेम्प्ट किया, बट बहुत ब्लंडर किया मैंने. ठीक है, ब्लंडर मतलब क्वेश्चन 1 में अच्छा खासा ब्लंडर किया. मैं मतलब एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि वो टारगेट मेम्ब्रेन वाले में क्या लिखना है. तो वो तो मेरा मतलब जो लिखना था वो नहीं लिखा. ठीक है, जो नहीं लिखना था वो लिख दिया. अच्छा ठीक है, पर लिखा ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ स्टडी करके लिखा है. डॉकिंग और सीजन मुझे अच्छे से आता था और मैंने स्टूपिडिटी कर दी. अच्छा ठीक है, लिखा अच्छा कुछ तो भी अटेंड करना जरूरी है. गलती से लिखा मटेरियल. फिर सेकंड क्वेश्चन ये था ना सर, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. हाँ, मेम्ब्रेन फ्लूइड. इसमें और फिर फर्स्ट वाले मैंने इतना टाइम लगा दिया और गलती लिख दिया था. इसमें तो लिखा है आई मेड दिस डायग्राम, लिपिड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के बारे में लिखा है. एंड टेम्परेचर वगैरह ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ठीक है, इसका ज्यादा एक्सप्लेन थ्योरी करने की कुछ जरूरत नहीं है. वैसे सिर्फ सीधा आपने रिलेटिव लो टेम्परेचर पे क्या होता है, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर क्या होता है, इतना भी दिया तो भी सर वो डायग्राम के साथ ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया एक ही पेज में, मतलब अच्छा, और लिखने का टाइम नहीं. ठीक है ठीक है. सी आज 36 मिनट ही थे ना आपको ऑलमोस्ट, तो ठीक है, कम लिखा तो भी अच्छा है. पूरा एटलीस्ट टेम्परेचर वहाँ इंग्लिश तो होना चाहिए. फिर थर्ड वाला सर ग्लाइकोप्रोटीन तो मुझे याद नहीं था, तो इतना याद था कि ओनिन सैकराइड है, एनिलिन सैकराइड है. एक एग्जाम्पल एलडीएल, इतना ही कुछ याद था तो इतना लिख दिया. फिगर मतलब कहीं धुंधला याद था बट नहीं फिगर आपको एक भी नहीं छोड़ना है. मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ये जो पूरे डायग्राम्स है ना, इसका ऑलमोस्ट 130 का सेट है मेरा सेल बायोलॉजी का, 130 का सेट है फिजियोलॉजी का, है ना. जो कोई भी ये सेट लेना चाहेगा अलग से मुझे बोल दो. आपको जो नेक्स्ट नोट्स हो ना, उस नोट्स में इस पूरे डायग्राम्स कंपाइल करके मैं सिर्फ एक ही पेज पे दे दूंगा. तो आपको अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स तो है ही ना, तो एटलीस्ट वो नोट्स में तो डायग्राम कर दो आप. ये डायग्राम्स कोई भी नहीं भूलना. ये डायग्राम्स कैसे मतलब ऑलमोस्ट 50% तो इंस्पायर्ड होते हैं, पर 50% डायग्राम में मैं बहुत अच्छा क्रिएटिविटी यूज करके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए. अगर आप ये अच्छे डायग्राम अगर एक्सक्लूड कर दोगे ना, तो जो बेनिफिट है बाकी लोगों से, आपका बेनिफिट वो चला जाएगा. फिर तो स्पोर्ट्स वाले में मुझे लगा इनविवो सिर्फ अच्छा स्पोर्ट्स वाला ये था, तो सर मैंने ये तो बनाया है बट ये एक्सटेंड नहीं किया रीनल पाइपनेट वाला. ठीक है, एटलीस्ट ये कंटेंट है यही पता था, ये ठीक है ना. डायग्राम ड्रॉ की क्या ये? नहीं सर, डायग्राम ये वाला नहीं किया. अच्छा, सी डायग्राम जब ऐसे देखते हो ना, हमें थोड़ा डिफिकल्ट ही लगता है डायग्राम, पर मैंने बोला ये डायग्राम जो एंटायर पूरा डायग्राम है ना, ये डायग्राम सेम ही है. ये एक बार एक रिएक्शन हो गया ना, ये एक बार तो यही ड्रॉ किया. ये देखो ना, SCO3 माइनस H2OCO2, इसका सिर्फ उल्टा किया है, फिर SCO3 माइनस, सेम ही डायग्राम हर तरफ ड्रॉ किया. ये सिर्फ एग्जामिनर को थोड़ा हमें भी दिखाना पड़ता है कि हमें ज्यादा पता है. सिर्फ वही लिखा है यहाँ पर, जो लिखा है ना वो सेम ही इधर लिखा है, कुछ नहीं है. सिर्फ आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, पेन जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं. लास्ट में स्पीड है थोड़ी इसलिए. अच्छा, और सर इसमें तो मुझे लगा इन विवो मतलब इंटेंसिक होता है, तो मैंने इंटेंसिक पूरा बना दिया, फैक्टर्स लिख दिए, एक्सटेंसिक नहीं लिखा. अच्छा, छोटा सा पार्ट नहीं लिखा. इसीलिए वो वर्ड डाला था इन विवो स्पेसिफिकली, मुझे पता था, पर मुझे तो लगा था कि आप लोगों को पता भी चलेगा कि नहीं इन विवो मतलब क्या है, क्योंकि ये इन विवो और इन विट्रो यहाँ सिर्फ यहाँ मेंशन किया था मैंने. अच्छा, इसलिए मुझे लगा कि इंटेंसिक है, एक्सटेंसिक नहीं है. मेरे को लगा सब इंटेंसिक पाथ पे पूछा, क्योंकि ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं ना जिसमें सिर्फ इंटेंसिक पाथ पे पूछा, एक्सटेंसिक नहीं पूछा.
तो मुझे लगा वैसे ही होगा। नहीं नहीं, इन विवो का मतलब ही क्या होता है, सिर्फ वो जो अपने बॉडी के अंदर है उसको इन विवो बोलते हैं ना। इन विट्रो मतलब क्या, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन है, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो ये सारे इन बॉडी में ही तो हो रहा है ना एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ठीक है। ओके। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट इतना लिखा तो आपको 2-4 मार्क मिल सकते हैं। हाँ सर ठीक ही है। और फैक्टर्स एनालिस्ट कर दिए क्या बाद में? हाँ सर फैक्टर्स लिखे ना। अच्छा ठीक है ठीक है, फैक्टर्स के कुछ मिल सकते हैं, पर फैक्टर्स एनालिस्ट करना एक्सपेक्टेड ही नहीं था ज्यादा इस क्वेश्चन में। ठीक है चलो देखेंगे, आपका आंसर देखने के बाद बोलेंगे। बाकी लोगों का क्या सीन है? अभिषेक आपने तो, आप तो लाइब्रेरी में होंगे। आरुषि सिंह आई थिंक नहीं है। जयश्री आपने लिखा, कैसे लिखा? आरुषि आपने लिखा, कैसे लिखा? आप कुछ इनपुट देना चाहते हो? कुछ क्वेरीज है आपके यहाँ? सर मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिख दिया, फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की तरह। फ्लूइड मोज़ेक लिख दिया, अच्छा। इसके लिए हमें ये एग्जाम जरूरी है ऐसे करने में। अगर ये ऐसे मिस्टेक्स अभी कर दोगे ना तो एग्जाम में नहीं होगा, और एग्जाम में नहीं होगा तो आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा आएगा। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक भी लिख दिया तो एटलीस्ट कुछ तो लिखा है, अच्छी बात है। ठीक है, पर ये फ्लूइडिटी लिखना है। और ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का कंटेंट तो, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का जो कंटेंट है ना वो तो कहीं अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे नोट्स में ही है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी और मेम्ब्रेन असिमेट्री। मतलब सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिखा है कि वो जो मतलब मेम्ब्रेन जो ये करते हैं ना, प्लेस बदलते हैं ना, तो वो आइसबर्ग जैसे दिखते हैं, इसलिए उसमें थोड़ी फ्लूइडिटी आ जाती है, तो उस वजह से मैंने सोचा। ठीक है, आपने पढ़ा है इसलिए यूज किया, पर आपने अगर ये पॉइंट पढ़ा होता तो आपको आ जाए। आपने नोट्स नहीं पढ़े, इसका मतलब पूरा मेम्ब्रेन उसमें लिखा है ना आइसबर्ग की तरह वो जो होते हैं मेम्ब्रेन्स, वो प्लेस होते हैं यहाँ से वहाँ, तो इसलिए अल्टीमेटली ये यही एक्सटेंड कर रहे हैं वहाँ पर। आइसबर्ग जैसा ही होता है ये, पर वो इनिशियल पार्ट था फ्लूइडिटी का, मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। मॉडल अलग है और ये फ्लूइडिटी अलग कंसेप्ट है ना। इस पे सिर्फ क्या होता है, ये नोट्स पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, हम क्या करते हैं स्पेसिफिक वर्ड से फोकस नहीं करते हैं। तो फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जैसा लग सकता है, जैसे इन विवो मॉडल इंट्रिंसिक मॉडल जैसा लग सकता है, पर कब नहीं लगेगा। एक तो हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको वो मतलब लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आने में टाइम है, क्योंकि क्या है, आप करंट अफेयर भी करते हो, जीएस भी करते हो, और बाद में फिर ये ऑप्शनल करते हो, है ना। पर ठीक है, जैसे जैसे आपका रीडिंग बढ़ता जाएगा ना, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगी ये चीज, है ना। और ऑलमोस्ट हर सैटरडे या फिर संडे हम जो टेस्ट ले रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट मई या फिर जून तक ही हमारे ऑलमोस्ट मोर देन ऑलमोस्ट 16 to 20 क्वेश्चन जिस पेपर्स हो रहे वाले टेस्ट पेपर्स, है ना। उसमें भी हर एक में अगर 5-5 क्वेश्चन भी लिए तो ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने वाले हैं। और वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि यार नहीं ऐसा ही आ सकता है, या फिर नोट्स पढ़ते वक्त किस पॉइंट पे फोकस करना है, ये भी आपको समझ में आएगा जब यहाँ पर आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और आरुषि आपको कुछ बोलना है? आपको कुछ इनपुट देना है? कैसे लिखा, या फिर लिखा है नहीं आपने? सर लिखे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने सर। अच्छा, तो आपने शायद फर्स्ट अटेम्प्ट किया है ना ये, तो आपको तो टाइम बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट लग गया होगा। पर यस सर, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, सिर्फ 3 लिखे हैं, वो भी ऐसी इनकम्प्लीट हैं सर। अच्छा, ज्यादा परफेक्टली नहीं लिख पाई मैं। ठीक है, आपको कंटेंट का सोर्स अच्छा करो, वहां से ही आपको अच्छे मिलने वाले ये। क्योंकि ये क्या है, अगर आपके पास सोर्स नहीं होगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी ये देखो ना, यहाँ पर इनके पास तो ऑलरेडी मेरे नोट्स है, फिर भी इतने कंफ्यूज हो गए, है ना। पर अगर आपके पास और ज्यादा मटेरियल होगा तो और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हम, है ना। ठीक है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर? सर मैंने फर्स्ट वाला किया है, रिसाइकल वाला, तो वो तो एकदम ही ऐसी गया है। हाँ नहीं, ये तो इसका कंटेंट तो ज्यादा है। ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इसके कंटेंट नहीं है ज्यादा। नोट्स में तो किसी नहीं है, पर बुक्स में भी है, वो बहुत ही रेयर बुक्स में है। सर सेकंड वाला क्वेश्चन अभी मैंने अटेम्प्ट किया है, वो तो ऐसे ही किया है। हाँ, इसमें लिखा है मैंने टेम्परेचर और ये लिपिड बाइलेयर कोलेस्ट्रॉल वाला लिखा है। एटलीस्ट ये जो फैक्टर्स है ना, लिपिड, जो कोलेस्ट्रॉल या फिर टेम्परेचर, एंड जो फॉस्फोलिपिड टेल्स का जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का जो है, ये भी अगर लिखा ना, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से क्या होता है, ये भी अगर एक्सप्लेन कर दिया तो भी आपका वेटेज बढ़ जाएगा आंसर का, है ना, सिर्फ एनालिस्ट करने से ही। ओके, और तीसरा कौन सा अटेम्प्ट किया? नहीं, थर्ड वाला नहीं किया सर मैंने अटेम्प्ट। अच्छा, फिर? हाँ, और फोर्थ छोड़ दिया, फिफ्थ किया है सर। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ किए हैं। फिफ्थ में क्या लिखा फिर? सर यही लिखा है मैंने, वही जो जैसे सोनल ने बोला, मैंने एक चीजों को ही मिसकंसेप्ट कर लिया है, इंट्रिंसिक। अच्छा,
तो मैंने भी वही किया सर। नहीं वही ये मिस्टेक होगा, इसलिए तो ये इन व्यू यूज किया है ना मैंने वर्ड स्पेसिफिकली, कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ यहाँ ब्लंडर होने वाला है ना। अगर यहाँ पर ब्लंडर नहीं होगे ना, यहाँ पर अगर ब्लंडर नहीं होगा, यहाँ पर अगर आसान लगेगा सब, तो एग्जाम में ब्लंडर ही ब्लंडर होंगे, है ना। तो अच्छा होगा कि यही ब्लंडर कर ले हम, ठीक है। ठीक है अभिषेक, आपको कुछ एटलीस्ट मैसेज में कुछ बोलना है क्या आपको? आप तो लाइब्रेरी में होते हो ना। आपने सही लिखे कि पांचों के पांचों क्वेश्चन लिखे क्या अभिषेक आपने? नो बोल रहे, 6:30 हो गए, मतलब अभी क्या मैसेज है, नहीं लिखे क्या? ठीक, कितने अटेम्प्ट किए फिर आपने? कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं ये बता दो, और फिर आज का सेशन हम स्टॉप करते। आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 2, नहीं 2 से कुछ नहीं होगा अभिषेक, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपका, है ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्पीड का, यू कैन कॉल मी, कुछ तो वे निकालेंगे, पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास टाइम की वजह से 2 किए सॉल्व तो मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पढ़ा नहीं इसकी वजह से अगर 2 सॉल्व किए तो और भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो देखेंगे, अगर आपको कुछ भी इसमें से डिफिकल्टी है और वो सॉल्व नहीं हो रही है तो यू कैन कॉल मी, ओके। टाइम का इश्यू है ना, टाइम का इश्यू है तो मेजर फैक्टर है आपको, है ना, क्योंकि जूलॉजी में आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग की, है ना। ये शायद मुझे तो लगता है ये सेकंड ही आपका एग्जाम है शायद, लास्ट टाइम तो आप नहीं थे, है ना। तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, यही सोचो ना, अगर आप इसी स्पीड से अगर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करते, ओके, और सेम प्रैक्टिस सेम, और ये मॉडल आंसर या फिर राइटिंग प्रैक्टिस अभी कभी नहीं करने वाले, क्योंकि फेब मार्च से तो आप प्रीलिम्स करने वाले हो। अगर यही आपका स्पीड रहेगा तो आपको ये कभी भी समझेगा भी नहीं कि अपना स्पीड क्या है। इसी से आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर दोगे और इसी से आप मेंस का भी प्रिपरेशन करोगे। जब एग्जैक्टली वहां पर जाओगे ना प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस में, तब बहुत ज्यादा टेंशन आएगा, क्योंकि पेपर होता ही नहीं है कवर जूलॉजी का, अगर ऐसा लिखे तो, है ना। फर्स्ट ही टेस्ट है ना, तो फर्स्ट टेस्ट है तो फिर भी 2 क्वेश्चन मतलब कम ही है। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करो, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रहा है तो मुझे कॉल करो, मैं आपसे बताता हूँ कि कैसे एटलीस्ट ट्राई टू इम्प्रूव स्पीड, है ना। डायग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किससे। फिर दूसरा रीजन क्या होता है स्पीड स्लो होने का? दूसरा रीजन ये होता है कि आपने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं होता है, आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी होता है ना वो कम है, ये एक वन ऑफ द रीजन होता है। अगर आपके पास पहले ही दिमाग में है ना इसमें इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या है क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको टाइम नहीं लगता उसको लिखने में, आपका पेन ऐसे जल्दी जल्दी चलता है वहां पर, क्योंकि आपको पहले ही पता है पूरा एंटायर उसका जो एक्सटेंट होना चाहिए उस आंसर का क्या है। अगर आपको डिफिकल्टी है, अगर आपके पास कंफ्यूजन है, तो जो कुछ आप लिख भी रहे हो ना उसका स्पीड बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता ये सही लिख रहा हूँ या फिर गलत लिख रहा हूँ, है ना। ये सही गलत में आपका स्पीड बहुत कम होता है, यहाँ एंड तक इसी स्पीड से लिखते हो, वो लिखने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि यार ये सही लिखा है नहीं लिखा है। इसकी वजह से अननेसेसरी टाइम चला जाता है यहाँ पर। इससे बेटर ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना पर्टिकुलरली वही क्वेश्चन लिखो पहले 3, है। मुझे लगता है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन में से तो आपको 2-3 तो पहले ही आते ही होंगे अभिषेक को, क्योंकि आप रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करते हो ना, तो 2-3 क्वेश्चन तो आते ही होंगे आपने, पर मे बी आपका सिर्फ थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम होगा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते तो आप इंप्रूव कर सकते थे आपका स्पीड, ठीक है। सो विल सी दैट इन नेक्स्ट सैटरडे में सेम टाइम में एग्जाम होगा ये। तो नेक्स्ट सैटरडे का सिलेबस क्या होगा मैं मंडे को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत पेंडिंग वर्क है वो करना है संडे को, ठीक है। तो संडे कल हमारा कोई भी लेक्चर नहीं है, कोई भी सेशन नहीं है कल, ठीक है। So ठीक है, we will stop this session here. I will just share you this PDF of this model answer. जिसने मुझे भेजा है ना मॉडल आंसर उनको शेयर करूंगा, ठीक है। So till then, have a good night.